Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 9. As you see, class 9 ICSE Biology, Candid ICSE Biology I have taken. Here we are studying the next chapter, flower. The third chapter is there, flowering plants, flower. आप पढ़ चुके हैं. Flower is the most attractive, brightly colored and conspicuous part of a plant. It helps in sexual reproduction and later forms food and seed. फ्लावर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है एंड आफ्टर फ्लावर चेंजेस इनटू फ्रूट्स एंड seeds, right? What are the main characteristics first? Flower is highly modified and specialized fruit meant for sexual reproduction. ये highly modified specialized fruit होता है. Nodes and internodes are highly condensed to form a flat thalamus or receptacle. Receptacle is the point from where the flower is formed. This you are able to see. Receptacle is a point where a flower is formed. Here, the thalamus is very short. It's usually born at the end of the stalk called peduncle, which is a pedicel. See, this is the flowers on which the flower arises. This is the pedicel. This is the broadened part where the flower arises. This is ये आपका पेडिसिल है जो आप पकड़ते हैं हाथ में, स्टॉक ऑफ द फ्लावर, दैट इज कॉल्ड पेडिसिल. और ये ब्रॉडेड एंड जहां से फ्लावर का बेस स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं थैलेमस या रिसेप्टिकल. ठीक है. थैलेमस कैन बी फ्लैट, कॉनिकल, कॉनकेव, डूम शेप. वो किसी भी तरह का हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, कॉनिकल हो सकता है, डूम शेप. एंड इट इज वेरी शॉर्ट, यूजली बोर्न एट द एंड ऑफ द स्टॉक कॉल्ड, जहां पर स्टॉक खत्म होता है, एंड ऑफ द पेडिसिल, देन देयर ओनली, यहाँ पर पेडिसिल खत्म होता है और यहाँ पर ये स्टॉक रिसेप्टिकल थैलेमस फॉर्म होता है. फ्लावर अराइजेस इन द एक्सिल ऑफ द लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द ब्रैक्ट. जो एक्सिल ऑफ द लीफ में फ्लावर फॉर्म होते हैं जिसे कहते हैं हम ब्रैक्ट. जो ब्रैक्ट में फ्लावर फॉर्म होते हैं, these the bracts which are formed, flower formed at the bract, at the base. ये देखिए ये फ्लावर है. इस फ्लावर के जो ये बेस में फॉर्म होता है, यहाँ पर जो ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ब्रैक्ट्स कहलाते हैं, फ्लावर के ब्रैक्ट्स पर. And the floral part are bound on the thalamus in the form of four whorls, चार whorl, calyx, corolla and rhizome gynoecium. Four rings or whorls of floral structures, they form the outer inner side. सबसे बाहरी की तरफ ये होता है सेपल्स, ये आपका बस्ट होता है, ये होते हैं आपका सेपल्स, ये है आपका पेटल्स, ये है एंड्रोशियम और ये है गाइनीशियम. ठीक है. एनी फ्लावर हैविंग ऑल द फ्लोरल वर्ल्स दे आर कंप्लीट. जब चारों फ्लोरल वर्ल्स होती हैं तो उस फ्लावर को हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर. अगर इनसे कोई भी एक एब्सेंट होगा तो हम उसे कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर. इफ एनी वन ऑफ देम इज एब्सेंट then we say that the flower is incomplete. Androecium and gynoecium, they are called the essential parts and they directly help in sexual reproduction. Androecium and gynoecium, this is called androecium, that is the stamens, and this is called gynoecium. They are the reproductive parts of the plant or essential parts of the plant. Whereas calyx and corolla, they are non-essential. They only protect the internal walls. Right. So smallest flower found in is in the Wolfia rhiza, and the largest flower is found in Rafflesia, which is pollinated by the elephant. And the longest inflorescence is found in agave. The longest inflorescence found in agave. Now, what are that part? See, flower is attached with the stem or its branches with the help of a stalk called pedicel. ये जो pedicel लंबा होता है इसको हम pedicel कहते हैं. If the flower is without pedicel, अगर पेडिसल लंबा है और स्टेम के यहाँ पर ही फ्लावर्स फॉर्म्ड होते हैं, यहाँ पर ही डायरेक्टली फ्लावर आपने देखा होगा बहुत सी जगह फॉर्म होते हैं, देन इट इज सेड टू बी सेसाइल. उसको हम सेसाइल बोलते हैं. इफ द पेडिसल में अराइज फ्रॉम द एक्सिल ऑफ ए ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, देन इट इज कॉल्ड ब्रैक्ट. जब हमारे उसके फ्लावर के ब्रैक्ट स्ट्रक्चर से ही अराइज होते हैं, जैसे ये देखिए ये ब्रांच है, ये फ्लावर है, यहाँ पर है. अगर इस जगह पर ये दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं उसको हम ब्रैक्ट, ये फ्लावर हुआ, ये पेडिसल से, ये है पेडिसल, इस तरफ अगर फॉर्म के फ्लावर फॉर्म्ड होगा तो उसको हम ब्रैक्ट बोलेंगे. ठीक है. द ब्रैक्ट. And sometimes pedicel may bear two small leafy green structures
called bracteoles, उसको bracteoles भी बोलते हैं. Other swollen end of the pedicel is thalamus. ये swollen end ये आपका thalamus है. On the thalamus, usually four walls of the floral structures are present. They are calyx, corolla, androecium and gynoecium. इसमें चार वॉल प्रेजेंट होती हैं, उसे हम कहते हैं कैलिक्स, करोला, एंड्रीशियम और गैनिशियम. The first two walls are non-essential floral walls. Non-essential, that is calyx and corolla. This is calyx, this is corolla, right? The inner two walls are essential. अंदर की जो दो walls होती हैं वो essential flowers कहती, because they take part in reproduction. They are the androecium and gynoecium. Androecium form the male reproductive part and gynoecium is the female reproductive part. Floral structure थे, सबसे पहले हम लेते हैं calyx. Calyx को हम sepals भी बोलते हैं. They constitute the outermost and lowermost wall. They are mostly small green leaf-like structure. ये आप देख रहे हैं small green leaf-like structure जो flower के base पे present होती है, उसे हम कहते हैं calyx. They are unopened floral bladder. जो कि फ्लावर होती कली जब बड खिलती तो बड इट इज कवर्ड बाय कैलिक्स. ये देखिए ये कैलिक्स होती है. दे प्रोटेक्ट द इनर वॉल्स ऑफ द फ्लावर in the bud stage. In some cases, sepals may be colored like petals, as in gulmohar, flame of forest. Such petals they are called petaloids. ले जब colored हो जाती हैं तो इनको हम petaloid कहते हैं. And the sepals is the outermost wall where all fused or free from each other. अगर ये free there, accordingly they are terms gamosepalous or poly. Poly means united, gamo means free. Gamosepalous, when all sepals are fused together, fully formed term, that is a sunflower, China rose, ये जैसे cup like structure. ये फ्यूज्ड होती है तो इनको हम गैमोस्पेलस कहते हैं. मैरीगोल्ड, पेट्यूनिया जस्ट है. और पॉली ये देखिए ये फ्री है. दे आर नॉट यूनाइटेड, दे आर टोटली फ्री. व्हेन ऑल सेपल्स दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर दे आर कॉल्ड पॉलीसेपेलस. जैसे रेनिकुलम, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्री, सरसों का पेड़ होता है. चाइना रोज है आपका, गुलमोहर का पेड़ होता है, उसमें होती है. या जैसे ससाइल फ्लावर हमने कहा था, ससाइल फ्लावर ये देखिए जैसे ये स्टेम में फॉर्म होते हैं, ये ससाइल फ्लावर्स हैं. और ये पेडिसिलेट है. इनमें पेडिसिल है, इनमें पेडिसिल नहीं है, डायरेक्ट फॉर्म है, तो ये फ्लावर सेसाइल होते हैं. ठीक है. अच्छा, अब ये फंक्शंस इनके क्या होते हैं. प्राइमरली दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. ये अपने फ्लावर बड को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट द इनर वॉल्स ऑफ द फ्लावर एट बड स्टेज. दे कैन ऑल्सो सिंथेसाइज फूड्स एज दे कंटेन. दे कैन मेक फूड. दे आर ग्रीन इन कलर. दे मे ऑल्सो हेल्प इन अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स. जो कलरफुल होते हैं तो बर्ड को ये अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट्स को, बर्ड को. एडिशनल फ्लोरल वर्स आउटसाइड द कैलिक्स, दैट इज कॉल्ड. जब एडिशनल वर्ड होती है कैलिक्स के आगे तो उसको हम एपिकैलिक्स कहते हैं. जैसे चाइना रोज में प्रेजेंट होती है, जो चाइना रोज का फ्लावर होता है उसमें हम देखते हैं उसमें नीचे वर्ड होते हैं, ये यहाँ पर ये होते हैं, ये है एपिकैलिक्स और ये है कैलिक्स और ये है करोला. ठीक है. अब हम आते हैं नेक्स्ट करोला पे. करोला पेटल्स, इनको सेपल्स हो गए, करोला को हम पेटल्स बोलते हैं. तो इसीलिए जब ये कलर्ड होती हैं सेपल्स तो उनको हम पेटेलॉइड बोलते हैं. Petals, the second word of the flower, collectively called corolla. They arise inner to and above the sepals. मतलब ये calyx है, calyx के बाद जो next word होती है वो corolla भी होती है. They inner to the above sepals of the thalamus. They are usually brightly colored. अधिकतर ये brightly colored सोई flowers जितने आपने देखे colored flowers के जो होते हैं वो corolla के होते हैं. They leaf like structure in the day blooming and strongly scented whitish in the night in the blossoming. जो होते हैं उनसे smell आती है जैसे like the सेपल्स दे में ऑल्सो बी फ्यूज्ड. और ये देखिए इसमें क्या है, गैमोपेटलस, यानी कि पेटल्स फ्यूज्ड बेल लाइक स्ट्रक्चर. और ये पॉलीसेपेलस, यहाँ पर मे बी फ्यूज्ड और फ्री. तो गैमोसेपेलस व्हेन द पेटल्स आर फ्यूज्ड और पार्शियली, जैसे कि पिटूनिया में होते हैं. ये पिटूनिया का फ्लावर. पॉली मीन्स फ्री. ये देखिए ये फ्री होते हैं जैसे हिबिस्कस, चाइना रोज का फ्लावर होते हैं. ये कैलिक्स है, ये छोटे छोटे ग्रीन फ्लावर्स हैं, ये एपिकैलिक्स, ये कैलिक्स, ये करोला. यानी सेपल्स, पेटल्स है. और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड अदर इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. इट एंक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट द स्टेमन्स, मतलब ये स्टेमन्स को और एंड्रीशियम को प्रोटेक्ट करता है और ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए. सम पेटल्स आर सेंटेड with a nectary at the base and produces sugary nectar.
जिसमें नेक्टर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है जो कि बेस में प्रेजेंट होती है फ्लावर्स के, जैसे ये हैं बेस में स्पाइडर होते हैं, लिली होते हैं, ये फ्लावर्स हैं, इसके बेस के अंदर पे नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है, जिससे कि नेक्टर में स्मेल आती है, जिससे कि बटरफ्लाई इंसेक्ट्स वगैरह जो उसमें इंट्रैक्ट उसमें अट्रैक्ट होते हैं। पेरियंथ, जब दो लेयर कैलिक्स और करोला नहीं होती, कैलिक्स और करोला दोनों की जगह सिर्फ एक लेयर प्रेजेंट होती, तब उसको हम कहते हैं पेरियंथ। नाइदर कैलिक्स नाइदर करोला, ओनली सिंगल वर्ड इज प्रेजेंट। In some flowers, such as asparagus, non-essential parts flowers are differentiated into sepals and petals. Non-essential, they are collectively known as perianth. Perianth, the individuals perianth lobes, they are called tepals. तो उनको ना हम sepals कहते हैं ना petals कहते हैं, तब हम उनको कहते हैं tepals. Tepals may be greenish और beautifully colored. ये जो होते हैं, जैसे ये है perianth, एक लेयर है, ये spider lily plant beautifully colored. And the corolla perianth may be sometimes bigger outgrowths such as spurs, नेक्ट्रिस एंड कोरोना, मतलब इसके अंदर भी जो है नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। जैसे जब हम कहते हैं स्पर फ्लावर का क्या होता है, जब स्पर इट इज द बीक लाइक ट्यूब शेप्ड आउटग्रोथ पेरियंथ विच कंटेन्स नेक्टर, जैसे बॉल्ट्रम नास्ट्रियम में होती है ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये आप ये जो इस पर जो ये एक जो स्ट्रक्चर होता है, इससे ये जैसे ये आपका कैलिक्स है, तो ये एक्सटर्न होकर के इस पर फॉर्म करती है। अब इस पर में क्या होता है, नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स कंटेनिंग होती है। तो स्पेशल ग्लैंड्स डेवलप्ड और द बेस ऑफ द फ्लोरल स्ट्रक्चर्स नोन एज नेक्ट्रीज secrete nectar, and corona sometimes when the corolla is split, then additional wall consisting of lobes, scales or hair is formed. It adds to the beauty of the flower. जैसे ये फ्लावर शो, ये स्पर्स फ्लावर कर रहा है, नेक्ट्रीज शोज होते हैं, नेक्ट्रीज इसके अंदर बेस में लोकेटेड होते हैं, जो नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं। अब ये आपका आता है एंड्रूशियम। अब एंड्रूशियम में क्या होता है, इनर टू द करोला, next word is androecium, male reproductive plant. Inner to the petals present male reproductive force stamens and they collectively cause androecium. इनको हम collective stamens होते हैं, group of stamens is called androecium. Stamens के group को जो है हम androecium कहते हैं. Stamens are present either in a single or more verse. Each stamen may be regarded highly modified leaf called microsphere. A typical stamen differentiates anther and filament. जो ये स्टैमन है ये डिफरेंशिएट होता है दो पार्ट्स का, ये स्टैमन है, ये एंथर है और ये फिलामेंट। जब इस एंथर को काटेंगे तो इसमें देखिए अलग पॉलन सैक्स होते हैं, इसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये पॉलन सैक्स होते हैं, और इसमें जो छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ये है आपके पॉलन ग्रेन्स। और अब इस पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स हैं, अगर आप इसको काटा है तो ये आपके ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट हुए, और इसमें से ये पॉलन, और इस पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें होता है आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन, इनर लेयर इज कॉल्ड इंटाइन, और अंदर जो है ये न्यूक्लियस, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जब ये इसके थ्रू पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होकर के इसके अंदर जाते हैं, तो यही जो ये मेल गैमेट होता है ये इसके थ्रू होकर के इससे फर्टिलाइज करता है। तो ये पॉलिन का स्ट्रक्चर है, ये पॉलिन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये एंथर जो होता है स्टिग्मा, ये सॉरी ये स्टेमेन, फिलामेंट और एंथर, दो एंथर्स कनेक्टिव। ये देखिए, ये जो एंथर लोब्स हैं ये बाई एंथर हैं, दो लोब्स हैं, और ईच लोब में दो पॉलन सैक्स हैं, पॉलन सैक्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स हैं, और ये जो बीच का स्ट्रक्चर है ये कनेक्टिव कहलाता है, ये जो होता है ये कनेक्टिव कहलाता है, ये एंथर होते हैं। अब फिलामेंट इज लॉन्ग सपोर्ट्स फर्टाइल हेड एंथर टू अदर लोब्स, they are attached back by a connective, and the anther consists of two lobes, each lobe is differentiated into chambers called pollen sacs, ये pollen sacs हैं filled with pollen grains, and the wall of pollen grains is made up of two layers, exine and intine। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, it contains of two layers। ये देखिए दो layers की होती है, exine और intine, दो layers होती हैं इसमें। एक्साइन, ये देखिए ये क्या है, इसमें डायग्राम, ये डायग्राम मैंने आपको दूसरी बुक से दिखाया है। ये देखिए, ये होती है एक्साइन, इट इज द आउटर ऑर्नामेंटेड मतलब कलर्ड protective cutinous and rough layer, it often bear spiny outgrowths। ये देखिए,
ये इसमें देखिए ये स्पाइनी आउटग्रोथ्स होती है, ये स्पाइनी आउटग्रोथ्स इन टाइन थिन डेलिकेट सेलुलोज लेयर दैट ग्रोज इनटू द पॉलन ट्यूब। ये लेयर जो होती है ये डेवलप होकर के ये पॉलन इसको बस्ट करके इससे पॉलन ट्यूब डेवलप होता है। तो फिलामेंट्स दे वर अटैच्ड ऑन द मैनर्स डिफरेंट वे में अटैच है। जैसे बेसिफिक्स, ये बेसिफिक्स है, अगर बेस से एंथर रिलीज होता है अटैच टू बेस ऑफ द एंथर, जैसे कि मस्टर्ड है, रेडिश में अदर है। एडिनेट, एडिनेट जब होता है जब फिलामेंट्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एंथर, ये से बेस से ये पूरे लेंथ से अटैच्ड होता है इसमें, यानी कि ये फिलामेंट पूरा यहाँ तक जाता है, ये पूरा कनेक्टेड होता है, एक पॉलिमरेज इनसाइड है एक इनसाइड है। डॉर्सीफिक्स्ड यानी कि डॉर्सल सरफेस पे अटैच्ड होते हैं, अटैच टू द बैक ऑफ द एंथर, जैसे ट्रुंकस अकेशिया में होते हैं। वर्सटाइल दे अटैच टू द बैक ऑफ द एंथर शार्प पॉइंट लीविंग द एंथर फ्री, सोइंग फ्री, ये शार्प पॉइंट पर होते हैं। पॉलीएंड्रस मतलब मैनी, द फिलामेंट में ऑफ द सेम ऑफ द डिफरेंट साइड, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, डिफरेंट शेप और साइज के। मोनोएडल्फस व्हेन दे फॉर्म ए सिंगल बंडल, जैसे चाइना रोज में। डाईएडल्फस दो बंडल फॉर्म करते हैं स्टेमन। पॉलीएडल्फस फिलामेंट्स ऑफ द स्टेमन्स यूनाइट टू फॉर्म मोर देन टू बंडल, जैसे सिल्क कॉटन है, सिट्रस है। ये देखिए इसमें जो है अलग अलग बंडल्स फॉर्म करते हैं। सिंजिनिशियस कंडर दे यूनाइट टू फॉर्म ए ग्रुप बट फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड, anthers are fused, filaments are free. Filaments are free, but anthers are united to form a single bundle. Anthers, they produce pollen grains which contains the gametes, and the filaments attached with the anther in such a way that it helps in pollination. अब ये नेक्स्ट आपका आता है जैसे गाइनीशियम। गाइनीशियम इट इज इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ऑर्गन कॉल्ड gynoecium or carpel. Flower is composed of one or more carpels, say, and the free occurring units of each carpel in a flower, they are called pistils. Each carpel is a flask-shaped structure. It consists of three parts: stigma, style, and ovary. तो ये तो उसके अंदर से, तो ये इसके तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तीन पार्ट्स हुए। ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये है स्टिग्मा जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं। स्टाइल लॉन्ग ट्यूबुलर स्टॉक होता है जिसके अंदर ओवरी नीचे स्वॉलन पार्ट होते हैं। ओवरी में भी अगर इसमें एक लॉक्यूल है तो उसको यूनिलॉकुलर बोलेंगे, कई लॉक्यूल्स हैं तो उसको हम मल्टीलॉकुलर बोलते हैं। तो इट इज़ द राउंडेड egg-like structures, ovules present inside the ovary, that is the embryo. The hollow cavity of the ovary contains ovary. So each ovule contains egg cell, and the position and the length of the stigma is help in the pollination, and the stigma is structurally adapted to trap the pollen grain. So floral axis, the different terms they have been given to the floral depending on the, they say complete flower, flower is said to be complete when all the four words are present. Incomplete, if any one word is absent, we say that the flower, कोई भी एक वर्ड absent होगी तो हम उससे कहेंगे flower incomplete है. Staminate, when only the androecium present, gynoecium absent, then flower is said to be staminate. Pistillate means pistil present. Pistil means female part. Gynoecium present and the androecium absent, then it is called the pistillate flower. Non-functional staminate, they are also known as staminodes. Neuter, the flower is said to be neuter when both androecium and gynoecium are present, जैसे कि ray florets of sunflower. A bisexual hormone, when both the words are present, flower is said to be bisexual. कोई एक वर्ड प्रेजेंट होगी या तो स्टैमेंस होंगे या गाइनीशियम, द फ्लावर इज सेड टू बी द यूनिसेक्सुअल. हाँ, in case of the flower unisexual, both the male and flowers may be present on the same plant or maybe they on the different plants. Same plant. Accordingly, the plants, monoecious plant, when both male and female unisexual flowers present on the same plant, said to be monoecious, जैसे gourd, mace, मेल फीमेल, फीमेल फ्लावर्स नीचे और मेल फ्लावर्स ऊपर होते हैं। ये तो जैसे कि इसमें सैटामेंस होते हैं तो उससे नीचे करके फीमेल फ्लावर्स को फर्टिलाइज करते हैं। और डायोशियस प्लांट, जब मेल और फीमेल फ्लावर्स बॉर्न ऑन डिफरेंट प्लांट। मोनोशियस प्लांट्स जिसमें कि एक ही प्लांट में दोनों होते हैं, ये देखिए एक ही प्लांट में दोनों, और डायोशियस में अलग होते हैं। नेकेड, फ्लावर इज सेड टू बी नेकेड इफ सेपल्स एंड बोथल्स आर एब्सेंट, तब उसको होते हैं जैसे कि बीटल पान के पेड़ में होते हैं, तब उसको हम इक्लेमाइडियस कहें। डिपेंडिंग अपॉन द फोलर सिमेट्री, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स अराउंड द एक्सिस, फ्लावर्स कैन बी कैटेगराइज्ड एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक, जब फ्लावर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाल्स which are images may be on vertical,
किसी भी हम सिंपल प्लेन से बाहर काटें, अगर वो सिंपल दो, अगर हम कहीं भी सेंट्रल से किसी भी तरह से काटें, अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है तो जाइगोमॉर्फी एक पर्टिकुलर प्लेन से काटने से ही सिर्फ सिंगल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। अगर किसी दूसरे प्लेन में सेंट्रल से काटें तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, उसको हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। अब जैसे आता है प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन जो होता है मीन्स अरेंजमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन। ये देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ प्लेजेंटा विद इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेजेंटेशन। ये डिफरेंट टाइप्स, जैसे मार्जिनल, द प्लेजेंटा इज डेवलप्ड एंड फ्यूज्ड मार्जिनस मेंबर्स इन द पी फैमिली। ये देखिए प्लेजेंटा, ये मार्जिनल प्रेजेंटेशन है, जिसमें कि मार्जिन में ऐसे मार्जिन में एक असर है। पैराइटल प्रेजेंटेशन अलोंग फ्यूज्ड मार्जिनस, मार्जिन में फ्यूज होते हैं, ये पैराइटल प्रेजेंटेशन कहलाता है। फ्यूज मार्जिन एट द कार्पल्स, कार्प ये है यूनिकॉर्पुलरी बट फ्यूज्ड एट द मार्जिन, ये कंटिन्यूस मार्जिनल है, ये साइड में फ्यूज है। ये जो होता है ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, चाइना रोज में है। अब जब हम फ्री सेंट्रल, तो फ्री सेंट्रल में क्या होता है, ओव्यूल्स ऑल अराउंड स्लाइंस प्रोमाइस इन द सेंटर, यहाँ पर ये फ्यूज होते हैं सेंट्रल में। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल में अलग अलग प्लेसेंटा ओव्यूज डेवलप ऑल ओवर द इनर सर्फेस ऑफ द कार्पल्स, जैसे वाटर लिली, इसमें ये चैम्बर्स अलग अलग चैम्बर्स, ज़्यादा चैम्बर्स में डिवाइडेड होते हैं। और फ्री सेंट्रल में जो सेंट्रल में एक जैसे होता है और फ्री सेंट्रल में डिवाइड होते हैं, ये फ्री सेंट्रल में डिवाइड होते हैं। और बेस सिंगल प्रेजेंटा बॉर्न एट द बेस, सिंगल प्रेजेंटा बॉर्न एट द बेस, तब ये उसका बेसल प्रेजेंटेशन कहलाता है। अच्छा, पोजीशन ऑफ द फ्लावर वाज ऑन द थैलेमस, ओवरी के फॉर्म हाइपोगाइनी ओवरी। तो हाइपोगाइनी ओवरी कब कहते हैं, जब सारे वर्ल्स फ्लावर के ओवरी सुपीरियर होती है, कैलिक्स करोला एंड्रिशियम ओवरी के नीचे से अराइज होते हैं, तब उसको हम कहते हैं सुपीरियर ओवरी। और इंफीरियर ओवरी, ये इस कंडीशन को हम हाइपोगाइनस बोलते हैं। पेरीगाइनस बोलेंगे, पेरीगाइनस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, हाफ सुपीरियर, यानी कैलिक्स करोला दो ओरी के नीचे से होते हैं, और हाफ एंड्रोशियम गाइनिशियम आधे पार्ट जो होते हैं फ्लावर के आधे ओवरी के ऊपर से फॉर्म होते हैं, दैट इज द पेरीगाइनस कंडीशन। और एपीगाइनस कंडीशन जब ओवरी अंदर की तरफ होती है और कैलिक्स करोला एंड्रोशियम ये दोनों पार्ट्स ओवरी के ऊपर से निकलते हैं, तब इसको हम कहते हैं एपीगाइनस ओवरी, यानी कि ओवरी नीचे है, showing epigynous condition of the ovary over there. This condition is called the epigynous ovary. This clearly you can see over here also. ये देखिए, ये हाइपोगाइनी, ओवरी ऊपर है, कैलिक्स करोला एंड्रिशियम नीचे से है। एपिगाइनी, एपिगाइनी ओवर तो नीचे है, कैलिक्स करोला ये सारे ओवरी के ऊपर से हैं। और पेरीगाइनी तो हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर, आधी ओवरी के ऊपर से ये आपका कैलिक्स करोला एंड्रिशियम निकल रहे हैं, बाकी ओवरी हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर है। ठीक है, अब ये हो गया, हमने प्रेजेंटेशन पढ़ लिया है। ये देखिए आपको इधर इसमें दिया, चूंकि इसमें डिटेल नहीं था तो मैंने आपको मार्जिनल, पैराइटल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल, बेसल। अब लास्ट टॉपिक आपका बचता है आपका प्लेजेंट, ये इन्फ्लोरेसेंस। तो ये इन्फ्लोरेसेंस आप इससे पढ़िएगा। The inflorescence means the arrangement of flowers on a twig is called inflorescence. ट्विग में फ्लावर्स कैसे अरेंज होते हैं उसको हम इन्फ्लोरेसेंस। टू मेन टाइप्स, रेसिमोस, साइमोस। रेसिमोस, इन दिस टाइप main axis never ends in a flower and continues grow to the lateral flowers. They are found in acropetal section. Youngest flower produced apically and older। ये देखिए, ये रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है, जिसमें कि यहाँ ओल्डर फ्लावर एट द बेस एंड न्यू फ्लावर टुवर्ड्स द एपिक। साइमोस में क्या होता है, एक्सिस एंड सिने फ्लावर एंड सो डज नॉट डॉटर एक्सिस, यंगेस्ट फ्लावर इज फाउंड बेसिकली टुवर्ड्स द older flower is towards the base and younger flowers are towards the downward, ये नीचे flowers होते हैं। तो some of the racemose main axis are elongated and flowers are pedicellate mustard, जैसे पेडिसलेट मस्टर्ड में होते हैं फ्लावर्स, अराइज होते हैं। ये देखिए मस्टर्ड प्लांट ये आपका है, इसमें देखिए फ्लावर्स बेस में अराइज होते हैं। यहाँ पर जो इन्फ्लोरेसेंस है ये रेसिमोस, ओल्डर फ्लावर्स आर टुवर्ड्स ईयर, यंगर फ्लावर्स आर टुवर्ड्स द एपेक्स, रेसिमी होते हैं। स्पाइक, मेन एक्सिस इज एलोंगेटेड, मेन एक्सिस इज elongated but the flowers are sessile tuberose,
ये मेन एक्सिस है फ्लावर सेसाइल, ये देखिए ये नहीं है। कोरिम, मेन axis is elongated and the pedestal of the lower corym is longer than those of the upper and flowers stand at the same। ये देखिए फ्लावर्स यहाँ पर मेन एक्सेस फॉर्म है, लोअर फ्लावर ब्लेस है लेकिन वो उसके ऊपर तक जाकर बराबर फ्लावर, जैसे आपने अम्बल कोरिम इन्फ्लोरेसेंस देखा होगा, इसमें एक सेम लाइन पे सारे फ्लावर्स होते हैं। अम्बल इन्फ्लोरेसेंस जैसे आप देखते हैं धनिया में होता है, कोरिएंडर में एक्सिस कंडेंस्ड एट द वन पॉइंट एंड ऑल पेडिस्लेट फॉर्म ए फ्लोरल वर्ड। ये आपका मेन फ्लावर, फिर ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर, इस तरह से छतरी नुमा ये अम्ब्रेला टाइप में इन्फ्लोरेसेंस, इसीलिए इसको अम्ब्रेला टाइप है तो इसीलिए इसको अम्बल इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। और हेड या कैपिटलम होता है, एक्सिस ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस फ्लैटेंड एंड लेटरली एक्सपैंडेड, ग्रोइंग पॉइंट इन द सेंटर। सो फ्लावर्स आर sessile एंड बिकम क्राउडेड ऑन द फ्लैट सर्फेस ऑफ द रिसेप्टिकल। ये जो क्राउडेड बन जाते हैं जैसे आपका सनफ्लावर में होते हैं, ससेप्टिकल फाउंड होती है, ये हेड और कैपिटलम ये आपका होता है सनफ्लावर में होता है। ये देखिए सब सनफ्लावर होता है, सन की तरह होता है, सन के डायरेक्शन में चेंज होता है, ये फ्लैट एंड एक्सपेंडेड होते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. Again, we will meet in the next video.